पर ट्रंप और अमेरिका को विदेश मंत्री एस जयशंकर का मुंहतोड़ जवाब। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, तुम्हें नहीं पसंद तो मत खरीदो। जयशंकर का सवाल, रूसी तेल खरीदने पर चीन पर क्यों नहीं लगाया टैरिफ। ट्रंप ने करीबी सरगेई गोर को बनाया भारत का नया राजदूत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रूसी तेल मामले को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर से यह सवाल पूछा है कि आखिर चाइना पर टैरिफ क्यों नहीं लगाते, जबकि वो भी रशिया से अधिक मात्रा में तेल खरीदता है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ वॉर और रशिया से कच्चा तेल आयात करने को लेकर के भारत ने अमेरिका और यूरोप को अभी तक का सबसे करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोई किसी को भी भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि आपको इससे समस्या है तो आप मत खरीदिए, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। सुनिए क्या कुछ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। There are allegations which come from the other side of not just purchase of oil but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny. You have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. आपको बता दें कि भारत अमेरिका के बीच इन दिनों ट्रेड और रूसी तेल खरीद को लेकर के टेंशन जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ट्रेड, तेल और भारत पाक रिश्तों में मध्यस्थता को लेकर के दोनों मुल्कों में तनाव है। विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका से कट्टी नहीं है बल्कि बातचीत जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि अमेरिका के साथ ट्रेड पर बातचीत में भारत के किसानों और छोटे उत्पादकों के हित सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी रेड लाइन से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे बात किसानों के हितों की हो या फिर रणनीतिक स्वायत्तता की हो। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी तीखा सवाल पूछा कि आखिर रशिया से तेल तो चाइना भी खरीदता है, लेकिन आखिर उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया जाता। सुनिए क्या कुछ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। Well, we've not had a US president who's conducted foreign policy as publicly as the current one. That itself is a departure. That's not limited to India. That's limited. In fact, for that matter, who's not conducted his domestic policies as publicly as this one too. So I think we got to understand, before I come to India-US, that the President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so. I'm just giving you some examples. Say, the applications of tariff in this manner, even for trade, is novel. The application of tariffs for non-trade issues is even more so. The fact that a lot of this is said in public, often the first pronouncement is in public, is even more unusual. So this is a situation which the entire world is facing. Now, where we are concerned, I think we have at this moment three issues. First of all, trade, and I think, in my mind, that's really the major issue in terms of the negotiations which are underway. And, negotiations are still going on. But the bottom line is, we have some red lines. You say negotiations are still going on because we heard the team is not coming. No, look, negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off.
I mean, and people do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look, there is what happens is we have red lines in the negotiations. We have to be clear as to red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. So when people pronounce that we have succeeded or failed or, where are you? The bottom line is, my counter question is, we as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. So anybody who thinks that, who criticizes what we are doing, my counter question is, are you therefore willing to compromise on those interests? Because I'm not. The second issue, in a way, is being presented as an oil issue. But why I say is being presented is because the same arguments which have been used to target India have not been applied to the largest oil importer, which is China, has not been applied to the largest LNG importer, which is the European Union. When people say we are funding the war or putting money in the coffers of Putin, India, European Union trade is bigger than India-Russia trade. So is American money not, European money not putting money into Putin's coffers? So, and if you look even at trade, look at countries You say they are getting more from Europe than from us? Is that the point? The overall India, Russia, EU trade is bigger than Russia-India trade. So my point is, look, if the argument is energy, there are bigger buyers. If the argument is who's trading more, there are bigger traders. If the argument is, by the way, percentage of increase, okay? Now, yes, some countries haven't increased the percentage because they've gone and bought oil from Iran, okay? To which also the Americans have objections. So my point, look, there is a certain inconsistency here. And if you look even at exports, I mean, India's exports to Russia have grown, but not that much. I can think of some other countries whose exports have grown dramatically after 2022. And if our exports have suddenly surged, you know what that means. वही दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के 7 महीने बाद आखिरकार भारत के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को चुन लिया। उन्होंने 38 वर्षीय सर्गेई गोर को नई दिल्ली का नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। ट्रंप का यह कदम अचानक आया है क्योंकि 2 दिन पहले तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अमेरिका इतनी जल्दी भारत में अपना शीर्ष राजनयिक भेजने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने भारत में राजदूत नियुक्त करने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लिया था, जबकि ट्रंप ने बेहद कम समय में यह फैसला लेकर के चौंका दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने भारत के साथ रिश्तों में नया पन्ना खोलने की शुरुआत कर दी है। दरअसल सर्गेई गोर सिर्फ एक राजदूत नहीं होंगे, बल्कि उन्हें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसका मतलब यह है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान समेत इस पूरे क्षेत्र के मामलों का वे नेतृत्व करेंगे। इस नियुक्ति से यह आशंका भी उठ रही है कि क्या ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में तोलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने गोर को नियुक्त करते समय कहा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के लिए मैंने उसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जिस पर मैं सबसे अधिक भरोसा करता हूं। इस बयान से साफ है कि गोर केवल राजनयिक दूत नहीं है, बल्कि ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन
कैंपेन को आगे बढ़ाने का माध्यम भी हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने भारत से संबंधों को लेकर के ट्रंप प्रशासन को बड़ी चेतावनी दे दी है। दरअसल न्यूज़वीक मैगजीन में लिखे अपने आर्टिकल में निकी ने कहा कि अगर भारत के साथ 25 साल में बना भरोसा टूटता है तो ये रणनीतिक गलती होगी। निकी ने यह आर्टिकल ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ और उसके दोनों देशों के संबंध पर असर के बारे में लिखा है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को सलाह दी है कि वो भारत को एक और लोकतांत्रिक साझेदार माने। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत पर कई तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने भारत पर 25-25 करके 50% का टैरिफ लगा दिया है। और इसको लेकर के न सिर्फ विदेश मंत्रालय बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आए और उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करने वाला है। और इसी के साथ ही आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका को दो टूक ये बात कह दी है कि अमेरिका जो है वो जितने भी टैरिफ लगा ले, लेकिन जिस तरीके से भारत अपने किसानों के हित को सर्वोपरि रखता है ये चीजें आगे भी रखी जाएगी। हालांकि इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्षी दलों पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जब ट्रंप ने यह कहा था कि भारत की इकॉनमी डेड है तो इसको लेकर के जहां कई सारे नेताओं ने बयानबाजी की थी तो इन सब के बीच में देखने वाली बात यह थी कि जो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यानी कि राहुल गांधी, उन्होंने बकायदा सामने आकर के कहा कि अगर ट्रंप ये बताते हैं कि भारत की इकॉनमी डेड है तो आखिर क्या गलत कहा है। भारत की इकॉनमी डेड है, मर चुकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ही कई सारे नेताओं ने यह माना कि ट्रंप एक इल्यूजन में जी रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि भारत की इकॉनमी डेड है तो ये गलत सोच रहे हैं। फिर चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर शशि थरूर हो या फिर राजीव शुक्ला हो, ये कई सारे ऐसे इंडिया अलायंस के नेता हैं जिन्होंने इस बात को लेकर के न सिर्फ राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया बल्कि ये बताया कि हमारी जो इकॉनमी है वो डेड नहीं है बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।